Hello everyone, my name is Simran and I'm going to teach you mathematics. Students, in the last class we have already completed the chapter number 11 and today we are starting a new chapter of your syllabus, that is your chapter number 12. All about algebraic expressions. Alright students, and today we are going to have the introduction of this particular chapter. Alright students, so have a look at the first thing. Students, when I say algebraic expression, then it means that there is some kind of expression related to algebra. And when I say algebra, students, the first thing that is coming to my mind is the variable. What is variable, students? There are some sort of letters like A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, S, T and so on. Alright, that can vary in their values. ठीक है, जिनकी values vary करती हैं वो उन variables को क्या बोला जाता है, उन letters को क्या बोला जाता है, variables. Alright students, so students, there are some variable whose value varies and that is why they are called variables. Alright students, for example X, Y, L, M, etc. Alright, so we use these kind of letter to denote the variables, right? A variable can take various values. Its value is not fixed and that is why it is called variable, because it is varying in its value, right students? Next, on the other hand, a constant has a fixed value, right students? कोई चीज़ जो वेरी कर रही है उसको वेरिएबल बोल रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट. ओके, इनके नाम से ही पता लग जाता है कि किसका क्या मतलब है, वेरिएबल और कांस्टेंट. राइट स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों चीज़ें किसी एक्सप्रेशन में आ रही हैं तो इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है इनके नाम में ही पता लग रहा है. दैट इज़ वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करे, कांस्टेंट कुछ भी हो जाए जिसकी वैल्यू सेम रहे, कांस्टेंट रहे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट्स आर 4, 100, -7 एक्सेट्रा. अब 4 हमेशा 4 ही रहेगा, 100 हमेशा 100 ही रहेगा, -17 हमेशा -17 ही रहेगा. ठीक है, जहाँ पे अगर हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है. कैसे, ध्यान दो. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला x - 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो यहाँ पे x क्या है, 4 है ना. तो इस पे बेस्ड हम चीज़ें पता लगा सकते हैं कि किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सेम रहती है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो अब हमें पता है वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है. राइट स्टूडेंट्स, अब कोई भी एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स जो होता है वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है. ठीक है, वेरिएबल से और कांस्टेंट से. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, we combine variables and constants to make the algebraic equations and expressions. Alright students, कभी भी हमें कोई भी expression मिलता है तो वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, variable और constant. Alright students, और कोई भी expression बनाने के लिए हम variable और constants के अंदर कुछ operations करते हैं, like addition, subtraction, division and multiplication. So students, for this we use the operations of addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, तभी उन वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से हम कोई एक्सप्रेशन बना पाते हैं. ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस एक्सप्रेशंस लाइक 4x + 5, 10y - 20. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस. दिस इज 4x + 5. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हियर x इज द वेरिएबल जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, एंड 4 and 5 आर क्या है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं. राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन बनाने के लिए 4x और y ये तीन चीज़ें थी. फर्स्टली मैंने 4 और x का क्या करवाया, मल्टीप्लिकेशन कराया, देन इसके अंदर इस कांस्टेंट को ऐड कर दिया. ठीक है, और ये क्या बना, 4x + 5. राइट स्टूडेंट्स, so for making any kind of algebraic expressions we need to have the operations like addition, subtraction, division and multiplication between the variable and the constants. Alright students, and this is how we can easily make the algebraic expressions. Alright, look at another thing students. What is that? Have a look. Terms of the expression. ठीक है, अगर मैं किसी एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रही हूँ तो उसमें टर्म्स का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स. टर्म्स का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वन एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ तो 4x + 5, इस पूरी चीज़ में दो टर्म्स हैं. ठीक है, एक तो क्या है 4x और एक क्या है 5, बिकॉज इसमें मैं एक ऑपरेशन कर चुकी हूँ
उसके बाद मैं इसको इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सो हैव अ लुक, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। उसके अंदर कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन क्या करता है, उस एक्सप्रेशन में टर्म्स को अलग अलग करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है, -5, तो जहाँ जहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा ना वो अलग अलग टर्म्स होंगी। ये टर्म एक अलग टर्म है, दिस इज एंटायरली डिफरेंट टर्म एंड दिस इज ऑल्सो एंटायरली डिफरेंट टर्म। तो इसमें कितनी टर्म्स हुई, 1 2 3 टर्म्स हुई। और ये जो मल्टीप्लिकेशन और डिविजन वाला जो पार्ट होता है वो सिंगल टर्म होता है, वो एक ही टर्म होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। So students, terms are added to form expressions just as the term 4x and 5 are added to form the expression 4x plus y, and the terms 4x square and minus 3xy are added to give the expression 4x square minus 3xy, ठीक है। अब जैसे अगर ये दोनों डिफरेंट टर्म्स थी तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कौन सी टर्म बनेगी, 4x square minus 3xy, राइट स्टूडेंट्स। So this is because 4x square plus minus 3xy is equals to minus plus क्या होता है, माइनस होता है, तो 4x square minus 3xy, alright students। तो यही होता है किसी भी एक्सप्रेशन का टर्म, alright। Now students, फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी टर्म के। अब हमने पता लगा लिया कि फॉर एग्जाम्पल इसी को लेके चलो, अगर ये एक कंप्लीट क्या है, एक्सप्रेशन है, राइट स्टूडेंट्स। इफ दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन तो इसके टर्म्स क्या होंगे, ये 5 और 4x, क्योंकि बीच में क्या है, एडिशन का साइन है, तो ये दोनों चीजें क्या हैं, दीज आर टर्म्स, राइट, ये क्या है, टर्म्स। अब स्टूडेंट्स टर्म्स के अंदर क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिससे टर्म्स बनती हैं। स्टूडेंट्स टर्म्स आर मेड फ्रॉम फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब यहां देखो, यहाँ पे 4 और x क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे 4x बनने के लिए, ठीक है। सो ये 4 और x क्या होंगे, ये दोनों चीजें होंगी फैक्टर्स जिससे ये टर्म बनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैव अ लुक, वी से 4x एंड 4x, राइट, एंड x आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म 4x स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि 4x स्क्वायर को बनाने के लिए, 4x स्क्वायर टर्म को बनाने के लिए हमें कौन कौन से वेक्टर्स लेने पड़े, 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, तभी ये 4x स्क्वायर बना। तो ये वाले जो टर्म्स होंगे ना, ये वाले तीनों, दीज आर फैक्टर्स, इनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे, और इन्हीं की हेल्प से हमें कोई भी टर्म मिलेगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द टर्म -3xy इज द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स -3x एंड y। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल और देती हूं मैं आपको, ठीक है। अगर मानिए 12x y स्क्वायर z है, ठीक है, अगर कोई ये चीज है, ये दिस इज अ कंप्लीट टर्म, ये क्या है, एक टर्म है, क्योंकि इसमें कोई एडिशन नहीं है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म बनी कैसे है, 12 को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स y से मल्टीप्लाई किया और z से मल्टीप्लाई किया। सो ये 12 x y और z ये क्या है, इस टर्म के फैक्टर्स हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, these are the factors of this particular term. Alright, now this is all about the factors students. Have a look at the chart. This is the expression, ये कोई भी expression है, 4x square minus 3xy students। अब ये 4x square जो है, this is 4x square minus 3xy, ये क्या होंगी, इसकी दो टर्म्स होंगी। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, 4x square के 4x और x, और -3xy के क्या फैक्टर्स होंगे, -3x और y, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी टर्म या एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर डिस्कसिंग, दैट इज कोफिशिएंट्स, कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी की बात करूं, ठीक है, तो इसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगी होती है किसी भी वेरिएबल के साथ पूरी एक टर्म के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट। जैसे इसका कोफिशिएंट क्या है, 12, नॉट x नॉट y, बिकॉज ये तो क्या है, वेरिएबल है। तो किसी टर्म में न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। हैव अ लुक, द न्यूमेरिकल वैल्यू और द फैक्टर इज सेड टू बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। किसी भी टर्म के अंदर आने वाला न्यूमेरिकल वैल्यू उसका कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है। सपोज 4x है,
तो इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 इस टर्म का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात कीजिए 6xyz की, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 6, तो 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म 6xyz. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द टर्म 10xyz, 10 is the coefficient of xyz in the term -7x square y square. इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, -7, ठीक है, तो -7 will be the coefficient of this particular thing x square y square. All right students, and this is all about the coefficients. All right, now students have a look at the first example based upon the particular concepts that we have discussed, right? So identify in the following expressions terms which are not constants. All right, give their numerical coefficients. तो हमें अलग अलग expressions दे रखे हैं, जैसे ये एक complete expression है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, this is expression, this is expression and this is also expression. अब ये 4 एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं, हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस में से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ठीक है, मतलब हम टर्म बताएंगे ना, हम टर्म बताएंगे, हम क्या बताएंगे, वेरिएबल, जो टर्म्स वेरिएबल इंक्लूड कर रही हैं, ठीक है, तो उनके अंदर अगर कोई टर्म वेरिएबल इंक्लूड कर रही है तो उसमें हमें बताना है कि उसके कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, उसके कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम बात करेंगे एक्सप्रेशन की, राइट, कि किसी चीज़ में क्या एक्सप्रेशन है. फिर हम बात करेंगे किसकी, टर्म्स की, द टर्म्स दैट इंक्लूड वेरिएबल, ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की. राइट, नाउ ये पूरी चीज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है. फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, xy + 4. अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में बताइए कि इसमें क्या चीज है जो कांस्टेंट है. Students, this 4 is a constant. So, what is the term that is not constant or that is varying? That is xy. क्या है जो वेरी कर रहा है, xy. Right, students? अब इस xy में क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है इसका, 1. जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है. So, students, the numerical coefficient is 1. All right. Now, students, the second expression, that is 13 minus y square. अब इसमें क्या कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, 13 इज कांस्टेंट हियर. सो क्या ऐसी टर्म है जो कांस्टेंट नहीं है, दैट इज -y square. ऑलराइट, सो -y square is not constant. So basically it is a term that include variable, right students? So अब इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, -1, ठीक है, दिस इज -1. सो इसके साथ क्या है, -1. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड कोफिशिएंट स्टूडेंट्स, व्हाट इज 3 हियर, 13 minus y plus 5y square. Have a look students. Now students, ध्यान दीजिए. अब देखो, अब इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म, दिस 13 इज द कांस्टेंट टर्म, राइट. तो इसमें क्या क्या टर्म्स ऐसी हैं जो कांस्टेंट नहीं है, दैट इज -y, ये एक टर्म है, और दिस 5y square. मतलब ये एक ही एक्सप्रेशन के 2 टर्म्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन के 2 टर्म्स ऐसे हैं जो वेरिएबल इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ध्यान दीजिए प्लस माइनस है साथ में. अब -y का मतलब क्या है, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, दैट इज कोफिशिएंट. इसके साथ कौन सा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, -1, तो यहाँ आएगा -1, और इसके साथ क्या है, 5, तो इधर आएगा 5. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, फोर्थ क्या है, दिस 4p square q minus 3p q square plus 5. अब इसमें कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, दिस 5 इज द कांस्टेंट. तो क्या ऐसी चीजें हैं जो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, 4p square q and -3p q square. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 4 और इधर आ रहा है -3. All right students, and this is your question number 1, that is example 1. Looking at the second example students, what is that? Second example, what are the coefficients of x in the following expression? ठीक है,
कि इस एक्सप्रेशन में x के कोफिशिएंट्स क्या हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेशंस. राइट, एक्सप्रेशंस के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, x की. ठीक है, बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ x. सो टर्म्स दैट इंक्लूड x, right, and after that we'll be talking about coefficients, right, coefficients of x. ठीक है, next we'll be talking about this thing only, right students. अब first expression क्या है, 4x minus 3y. this is the first expression. अब वो expression, इस expression के अंदर वो term बताइए जिसमें x है. the term that is including x is 4x, right. so 4x is the term that is including x. Now what is the numerical coefficient of this 4x students? That is 4. So coefficient of x is 4. Next is students 8 minus x plus y. Now students, in this particular expression, minus x, term including x is minus x and the coefficient including minus x is minus 1. Alright. The third expression students, what is that? This is complete. Now this. Okay, y square x minus y. So the term that include x is x, y square x, right students. Now what is the coefficient that is including x? That is 1. numerical coefficient क्या होगा, 1. Alright students. Now fourth expression students, 2z minus 5xz. Have a look students, minus 5xz. This is the term that is including x, right students. Apart from this, there is 2x term, with 2z term which is not at all including x. So the coefficient including x is equals to minus 5. And this is the question number 2, example 2, first question. Now students, part 2 of this particular example is, what are the coefficients of y in the following expressions? अब हमें इन्हीं expression में से क्या करना है, y का value बताना है. ठीक है students. So firstly expressions. Next the terms including y. Right, terms including y, and next is the coefficient of y. Coefficient of y. Alright students, so the first thing is 4x minus 3y. In this students, y is lying in the term minus 3y. Now what is the coefficient of y? That is minus 3. Alright students, next 8 plus yz, right? This is the second expression. z, y. yz is the term that is including y. Coefficient is 1. Alright students. Next is third expression, y z square plus 5. So the term that is including y is this, yz square, and the coefficient is again 1. Next students, my plus m. my plus m. So the term that is including y is my and the coefficient is 1. Okay? So here a look is the question. Alright students, looking at the next thing, that is all about the like and unlike terms. ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ कि like terms क्या होती हैं और unlike terms क्या होती हैं, तो उसका क्या मतलब है. ठीक है, ध्यान दीजिए. 4xy और 4yz, इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? आप फर्स्टली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स विल इग्नोर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स. ओके, और हम वेरिएबल्स को देखेंगे. यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन से वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं फैक्टर्स के रूप में? x और y. और यहाँ पे फैक्टर्स के रूप में कौन से इंक्लूडेड है वेरिएबल्स? z और y. राइट, ध्यान दीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे y है. ठीक है, जो कि अनकॉमन है. मतलब जिस भी एक्सप्रेशन की टर्म्स के अंदर के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं तो उसका मतलब है कि वो अनलाइक टर्म्स है. ठीक है, और जिनके अंदर सेम होते हैं तो उनको बोला जाता है कि वो लाइक टर्म्स है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों क्या हैं? ये अनलाइक टर्म्स है.
दीज आर अनलाइक टर्म्स। और फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 12xy की और 6xy की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो xy और xy फैक्टर्स क्या है इसके, xy और xy, इसमें इसके फैक्टर्स सेम है ना, हर इन दोनों टर्म्स में इनके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, लाइक टर्म्स है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, तो हमें एक बार के लिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को इग्नोर करना है। ये नहीं देखना कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है तो ये लाइक है कि अनलाइक है, इसको एक बार नहीं देखो, बाकी की जो फैक्टर्स है वो देखने हैं। अगर बाकी के फैक्टर्स एक टर्म में सेम आ रहे हैं तो मतलब वो लाइक फैक्टर्स हैं, ठीक है, लाइक टर्म्स हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं तो वो अनलाइक टर्म्स हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। हैव अ लुक, व्हेन टर्म्स हैव द सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स, ओके, जब किसी टर्म के अंदर के अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। एंड व्हेन द टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स देन दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। किसी भी टर्म के अंदर अगर अलग से होंगे अलजेब्रिक फैक्टर्स तो उसको अनलाइक टर्म बोलेंगे, और जिनके अंदर सेम होंगे उनको लाइक टर्म्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सप्रेशन देखते हैं ये वाला, ठीक है, इसके अंदर जो ये टर्म है और जो ये टर्म है ये तो क्या है, लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है। 5 और 2 को इग्नोर करो, सिर्फ ये देखो कि बचा क्या, xy, ठीक है, वो दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि ये क्या है, लाइक टर्म्स है दोनों, ठीक है। ये कौन सी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स। और अब इसी में देखो, इसी में फैक्टर्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल 2xy के 2x और y, 5xy के क्या है, 5x और y, इग्नोर करो इसको, तो बचा क्या, ये और ये दोनों तो सेम आ रहे हैं ना, तो मतलब ये तो क्या होंगे, लाइक टर्म्स, राइट स्टूडेंट्स। और अब इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर वो टर्म्स देखो, फॉर एग्जाम्पल आप देखो -3x और 2xy, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें y है ही नहीं, ठीक है, एज अ फैक्टर, तो ये क्या होंगी, अनलाइक टर्म्स होंगी। ऑलराइट, हैव अ लुक, thus they are algebraic, that is those which contain the variable factors are the same and hence they are like terms। इसमें क्या बोला गया, ध्यान दो कि जिसके अंदर वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है, कंटेन हो रहा है, ठीक है, उसकी बात करें हम, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। फर्स्टली मोनोमियल्स, मोनो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4x, ये क्या है, एक मोनोमियल है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टर्म है, इसमें कोई एडिशन नहीं है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है, सो दिस इज अ सिंगल टर्म एक्सप्रेशन एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोमियल। So the expression that is including only and only one term, that is called monomial. All right. For example, 7xy minus 5m 3z 4. ये क्या है, monomials है, because in these particular expressions there is only and only one term. All right, students. Now, an expression which contains two unlike terms is called binomial. For example, students, x plus y. अब देखो, ध्यान दो, इसमें अनलाइक टर्म्स क्यों बोला है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं बाइनोमियल की बात करती हूँ और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ये 12xy था, अब मैं पहले केस में आपको इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बता रही हूँ, अगर मैं दोनों लाइक टर्म्स ले लेती स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने एडिशन लगाया, अपनी जान में मैंने 2 टर्म्स लिखी है, ठीक है, 2 टर्म्स लिखी, लेकिन क्या लिखी, लाइक टर्म्स लिखी, बट इवेंचुअली स्टूडेंट्स आई कैन राइट इट लाइक 18xy, राइट, क्योंकि ये और ये सेम है, तो न्यूमेरिकल चीज़ को तो हम ऐड कर ही सकते हैं, तो ये क्या बन गया, 18xy बन गया, तो इवेंचुअली तो ये एक ही टर्म बनी ना, ये तो 2 टर्म्स बनी ही नहीं, ये तो मोनोमियल ही हुआ। मोनोमियल को मैंने स्प्रेड करके बाइनोमियल के फॉर्म में लिखना चाहा था, तो बाइनोमियल का एक्चुअली मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइनोमियल ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम 2 अनलाइक टर्म्स इंक्लूड करते हैं। अनलाइक टर्म्स क्यों, क्योंकि लाइक टर्म्स को तो इवेंचुअली आप ऐड कर लोगे, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है, so that is why we contain the unlike terms in the binomial। so binomial क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 unlike terms आती हैं उसको क्या बोलते हैं, binomial। alright students, so like m minus 5 mn plus 4m, right,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर बाइनोमियल्स, इनको क्या बोला जाता है? बाइनोमियल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हैव अ लुक नाउ। अब ट्राइनोमियल किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जिसके अंदर, जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स आ जाती हैं, वही 3 टर्म्स अनलाइक टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। नाउ इन जनरल स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पहले तो आप ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स देखिए, ये मतलब कोई भी चीज़ जिसके अंदर कोई भी 3 अनलाइक टर्म्स आ रही हैं, वो क्या होंगी? एग्जांपल्स होंगी ट्राइनोमियल्स की। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 6xy प्लस 12x² प्लस 4, ये क्या है? एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स क्या हैं? अनलाइक हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब स्टूडेंट्स अगर हम जनरल वे में बात करते हैं तो हम जनरली बात करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो इन जनरल एन एक्सप्रेशन विद 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो पॉली का मतलब होता है नंबर ऑफ, ठीक है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जब एक से ज़्यादा टर्म आती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो इसीलिए मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल आर ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इसी के अंदर बोलते हैं कि जितनी भी चीज़ें होती हैं किसका पार्ट होती हैं? पॉलिनोमियल्स का पार्ट होती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 3। State with reasons which of the following pairs of terms are of like terms and which of them are unlike terms. Okay? तो अब यहाँ देखिए, ये दोनों टर्म्स क्या हैं? यहाँ पे कोफिशिएंट, हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं लेना, हमें सिर्फ इसका वेरिएबल देखना है। 7 को इग्नोर करो, बचा क्या? x। 12 को इग्नोर करो, बचा क्या? y। क्या ये दोनों सेम है? नो, ये दोनों सेम नहीं है। सो इसका मतलब क्या है? ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। रीजन क्या है स्टूडेंट्स? रीजन इज दैट द वेरिएबल इज नॉट द सेम। द सेम, ऑल राइट स्टूडेंट्स, द वेरिएबल इज नॉट द सेम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें बताना है कि इज दिस अ लाइक टर्म और अनलाइक टर्म? 15x माइनस 21x। अब ध्यान दो, वेरिएबल तो देखना है बस, कोफिशिएंट नहीं देखना, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं देखना। इसमें वेरिएबल क्या बचा? x, इसमें वेरिएबल क्या बचा? x। अब x और x क्या है? सेम आ रहे हैं ना, सो ये क्या है? लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, दीज आर लाइक टर्म्स एंड वाई? रीजन इज दैट द वेरिएबल इज सेम, द वेरिएबल एज फैक्टर इज सेम। All right students, looking at the next part, what is that? Minus 4ab and 7ba. So minus 4ab और 7ba, right? So हमें 4 और 7 को तो क्या करना है? इग्नोर। बचा क्या स्टूडेंट्स? ab और ba। अब ab और ba किस किस से बना है स्टूडेंट्स? a इंटू b और ये b इंटू a। इसमें a भी है और b भी है, इसमें भी देखो b भी है और a भी है, तो दोनों चीजें सेम है ना, तो ये भी क्या होंगे? सेम आ रही है, तो ये क्या है? लाइक टर्म्स। और सेम टर्म्स आ रही है तो इसका मतलब क्या रीजन होगा? फैक्टर्स आर द सेम। फैक्टर ऑफ दिस टर्म is the same. All right students, and this is your part 3. Next students, the part 4. 3xy and 3y, 3x, 3 और 3 को क्या करेंगे? इग्नोर, ठीक है। इसमें क्या बचा? xy, इसमें क्या बचा? x। अब xy, x इंटू y, मतलब कि इसमें दो चीज़ें हैं, x और y, और इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज x। y तो है ही नहीं, तो मतलब ये क्या है? अनलाइक टर्म्स है। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज दिस थिंग इज नॉट एट ऑल इंक्लूडिंग y। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट 5। 6xy स्क्वायर 9x² y। 6 और 9 को हम इग्नोर करेंगे, सो दिस इज xy स्क्वायर और दिस इज x² y। अब स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स क्या हैं? x इंटू वाई इंटू वाई, और इसके फैक्टर्स क्या हैं? x इंटू एक्स इंटू वाई। ध्यान दो, बिकॉज x एक बार मल्टीप्लाइड है और y कितनी बार? y का स्क्वायर है, मतलब y 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, एंड इधर x 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है और y एक बार मल्टीप्लाइड है।
सो बेसिकली स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स क्या हैं, x, y और y, और इसके फैक्टर्स क्या हैं 2x और y, मतलब x एंड y। यहाँ पे देखो क्या ये सेम है, नो, इधर एक बार x है, नीचे 2 बार x है, इधर ऊपर 2 बार y है, नीचे 1 बार y है, तो इसका मतलब ये अनलाइक है। These are unlike terms. All right, students. तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज द फैक्टर्स आर नॉट एट ऑल द सेम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 6। ऑल राइट, पी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू स्क्वायर। अब हम 1 और -4 को इग्नोर करेंगे कंप्लीटली। पी क्यू स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर, अब ये तो अपने दिख ही रहा है कि इसमें पी क्यू और क्यू, इसमें भी पी क्यू और क्यू एज फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो दिस इज लाइक टर्म। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज द फैक्टर्स आर द सेम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट 7, mn square and 10mn। ignore the variable, ignore the coefficient students, mn square and this is mn। इसमें m into n है और इसमें क्या है m into n है, तो मतलब इसमें m n n ये 3 चीजें आ रही हैं और इसमें 2 चीजें आ रही हैं m और n, तो यहाँ 2 यहाँ 2, ये एक्स्ट्रा इसमें, तो ये क्या है अनलाइक टर्म्स, factors are not the same. All right students, and with this we are done with the first exercise of the chapter number 12, algebraic expressions examples. In the next exercise students will be doing the questions of this particular exercise. Till then students, do practice hard at your home. We'll be meeting in your next class. Have a nice day to all of you. Bye bye.